اور ہمارا جو ایجنڈا ہے بنیادی طور پہ وہ آل پارٹیز کی اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی جو رابر کمیٹی بنی تھی، اور 25 تاریخ کو پاکستان میں 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے پراٹ داندلی زدہ الیکشن آل پارٹیز کی طرف سے ڈکلیئر ہوا ہے، اور 25 جولائی کا جو دن ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے، اور پورے ملک میں چاروں دارالخلافہ میں اس کے خلاف سیاسی احتجاجی جلسے ہوں گے۔ آل پارٹیز کی طرف سے جو فیصلہ ہے، نیشنل پارٹی اس کے ساتھ ہے، اور ریبر کمیٹی اور تمام کمیٹیوں میں ہماری باقاعدہ نمائندگی ہے۔ ہم ملک میں جمہوریت کے استحکام، پارلیمنٹ کی بالادستی اور یہ جو غیر جمہوری انداز میں ملک پہ ایک سلیکٹڈ حکومت کا قبضہ ہے، جو قبضہ گیری ہے، اس کے خلاف متحد ہیں۔ اس سلسلے میں 25 تاریخ کو یوم سیاہ اور جلسہ کیا جائے گا بلوچستان میں بھرپور انداز میں۔ تمام سیاسی پارٹیاں اس میں اپنا جو ہے بھرپور شرکت کریں گی، اور ساتھ ساتھ پورے بلوچستان میں اس سلسلے میں جو ہے جلسے اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ مہربانی۔ ابھی آج جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، یہ ان فیصلوں کے تناظر میں جو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں کچھ فیصلے ہوئی تھی، اور سب سے پہلے جو فیصلہ تھا کہ چرمائے کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہے، تو وہ کل تو جمع ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد 25 تاریخ کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا۔ تو ان کی یوم سیاہ منانے کے لیے ہم نے اس اجلاس کو بلایا ہے، اس کو کامیاب کرانے کے لیے۔ اور یہ تحریک یہ ایک تسلسل ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ جب تک اصلی حقیقی جمہوریت بحال نہیں ہوئی ہے اور صحیح، صاف اور شفاف الیکشن اس ملک میں نہیں ہوئی ہے، تو یہ تمام سیاسی جماعتیں اس ایک ایجنڈے پر متفق ہیں۔ تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے تو فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف جب مارچ ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ہم اس پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آل پارٹیز بھی اس پہ متفق ہو گئے تو بھی ٹھیک ہو، نہ ہو تو جمعیت علماء اسلام نے اسلام آباد کے لیے مارچ کرنے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے، اور اس تسلسل میں ہمارا جدوجہد جاری رہے گا۔ اور ملن مارچ بھی 28 تاریخ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور 25 تاریخ پہ اسلام آباد میں ملن مارچ ہے، اور اس کے بعد ہم ہی جمہوریت کے بحالی کا جو تاریخ ہے یہ آگے بڑھائیں گے۔ اور جب تک ملک پہ یہ حکومت مسلط ہو اس وقت تک، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ میں جو مہنگائی، جو ٹیکسز انہوں نے لگایا، جو عام آدمی کا زندگی اجرم بنا دیا، پیٹرول کے قیمتوں کو دیکھا جائے، گیس کی قیمتوں کو دیکھا جائے، ڈالر کہاں تک پہنچ گیا، لہٰذا یہ پاکستان کے معاشی تباہی کا آخری، تو اگر سیاسی جماعتوں نے یہ تحریک شروع نہیں کی اور اس مسلط شدہ حکومت کو ختم نہیں کیا گیا تو پاکستان کے عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا پاکستان کے عوام کے بحالی کے لیے، ان کو صحیح جمہوریت دلانے کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق اور اتحاد کا عزم کر رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ 25 جولائی کے حوالے سے جس طرح ملک معاشی طور پر اور IMF کے تابع بجٹ کے غریب عوام جو اس کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں، اور صحیح اور سویلین بالادستی کے لیے ان سیاسی جماعتوں کی جو شروع کردہ تحریک ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی ان کے شانہ بشانہ ہوگی اور اس کے مکمل حمایت کرے گی۔ سب سے پہلے تو میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا، اور خصوصاً آپ میڈیا کے ساتھیوں کا جو ہمیشہ ہمارے آواز کو ان غاصب اور ظالموں تک پہنچاتے ہو، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
आज का जो हमारा आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मकसद 25 तारीख को हम तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, क्वेटा में, बाकी सूबों में 25 तारीख को हम योम स्याह के तवस्सुस उससे मनाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पे हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख के जो योम स्याह के तौर पे और जो बड़े जलसा मुंतखब करने हम जा रहे हैं उसको इंशाअल्लाह हम कामयाब बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे तमाम पाकिस्तान के सियासी पार्टियों ने, जमहूरी पार्टियों ने जो फ़ैसला किया था कि हम चेयरमैन सेनेट को हम तब्दील करेंगे, तो ये पहला हमारा कामयाबी है सियासी पार्टियों का, जो वो कल तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक मुसल्लत शुदा जो हुकूमत इस टाइम आवाम पे मुसल्लत है। हम समझते हैं कि जब तक जो सियासी जमहूरी पार्टियाँ इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रहा है, डॉलर को आप देखें लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। गरीब तो सूखा रोटी भी नहीं खा सकता है। अगर किसी का 17,000 रुपये तनख्वाह हो और उसके फैमिली के 10 अफराद हो, आप अगर उसको एक माह तक हिसाब करें तो वो एक रोटी सूखा भी नहीं खा सकते हैं, इतना महंगाई हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं ये सब हम मिल के इसको जब तक हम नहीं भगाएंगे, ये एक यहूदी लहाबी है, ये किसी और के एजेंडे पे आया है, यहाँ पे मुसल्लत हुआ है जो अपना मनमानी कर रहा है। और जब तक वो कुव्वतें जिस लोगों ने इनको लाए हैं वो उनके साथ थे, वो भड़के मारता रहेगा। जब उन लोगों ने हाथ खींचा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का नाम निशान भी यहाँ नहीं होगा। आप देखें राना सनाउल्लाह, एक सूबाई वज़ीर, एक MNA, एक बहुत बड़ी पार्टी का सूबाई प्रेसिडेंट, उन लोगों ने उसके फाइल में कुछ नहीं देखा, जाके उसके ऊपर मनशियात रख के झूठे केस में उसको अंदर किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जब से इमरान खान न्याजी आया है लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। आप बलूचिस्तान में देखें, आप बलूचिस्तान में जो अपने पसंदीदे लोगों को अरबों की फ़ंड दिए गए, जो मुंतखब नुमाइंदे तो लोगों ने जिसको वोट दे के भेजा गया था उन लोगों को मैं समझता हूँ कि न होने के बराबर फ़ंड दिए गए। इस तरह ये जुल्म नाइंसाफ़ियाँ कब तक चलेंगे? जब तक हम सारे मुत्तहिद होंगे और इन लोगों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला तहरीक चलाए और इसके बाद फिर इस्लामाबाद में होगा। हम सारे पार्टियाँ मिल के उस टाइम तक हम लड़ते रहेंगे जब तक ये मुसल्लत शुदा एक जो माफिया है पाकिस्तान पे मुसल्लत है उसको जब तक हम नहीं भगाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा तहरीक सेनेटर का कि भाई एक पासमानदा सूबा है उसको नुमाइंदगी दी जाए जो कि वो सबको एक नज़र से देखे और न्यूट्रल रहे। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरे साथियों ने उसको वोट दे के सेनेट अपना चेयरमैन सेनेट बनाया। आपने देखा कि वो इलेक्शन में जो हाल ही में इलेक्शन गुजरे उसमें उसका क्या किरदार था, वो DCओं को, वो कमिश्नरों को, वो इलाके के लोगों को फ़ोन करके जो रातों रात एक पार्टी बना उसके बारे में जो वो उन लोगों को सिफारिश करता था, या मरकज़ में बैठ के बाकी पार्टी जो अपना अपोजिशन पार्टी है उनके ख़िलाफ़ जो उसने काम शुरू किया था। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर दोस्त पे एहसान किया है और हर दोस्त पे को इम्तिहान में डाला है कि वो क्या करते हैं, मगर उसने उस पर नहीं उतरा। तो फिर तमाम पार्टियों ने मुश्तरका ज़ाहिर APC में बैठ के ये फ़ैसला किया कि इस शख्स को हमने हटाना है। जब पार्टी के तमाम कायदीन ने ये फ़ैसला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लब्बैक किया। देखिए सादिक संजरानी का हटाने से मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जाएगा जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है या ये मुसल्लत शुदा जो आपका हुकूमत है इसको कि हमारे तहरीक जो है न एक कामयाबी की तरफ जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहें तो इमरान खान को हम 2-3 महीने में हटा सकते हैं।
तमाम सियासी पार्टियों ने ये फ़ैसला किया इस इलेक्शन के बाद इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए और जमहूरियत के लिए कि इसको 1 साल तक छोड़े कि जो इसने इलेक्शन से पहले जो कंटेनर पे बैठ के जो दावे किए थे तो आप सबके सामने हैं। तमाम सियासी पार्टियां यहाँ मौजूद है, आप मीडिया के साथी यहाँ मौजूद है कि आपके साथ उसने क्या किया, बाकी लोगों के साथ क्या किया। वो इतने झूठ बोले। देखे अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक में लिखा हुआ है, मैं समझता हूँ कातिल पे भी लानत नहीं भेजा है, शराबखोर पे भी लानत नहीं भेजा है, मगर झूठे पे अल्लाह का लानत होता है। तो झूठ बहुत बुरा और बड़ा गुनाह है, तो उसने हमेशा झूठ बोला है। आप देखिए 24 घंटा पहले एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, हम बाकी मुल्कों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म भी झूठ बोलता है, किसी ने उसको इनवाइट ही नहीं किया है, वो बोलते हैं वो रूस के दौरे पे जा रहा है। आज आप अखबारों को चेक करें, टीवी को देखें, चैनलों को देखें कि वहाँ के जो सफ़ीर है या जो तर्जुमान है उसने क्या हमने इसको इनवाइट ही नहीं किया गया। ये देखिए ये पता नहीं किस तरह के हुकूमत चला रहे हैं। अगर जब से ये लोग इस असेंबली कौमी असेंबली में आए हैं, मैं समझता हूँ वासिफ साहब हमारे काबिल एहतराम, वो उन लोगों के साथ बैठता है और लोगों की बातें सुनता है। आप देखिए किस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जो पार्लिमान का इज़्ज़त है, मैं समझता हूँ इन लोगों को अभी 24 घंटे भी छोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म है। और इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जो हमने कबूल नहीं किया, सारे पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया, हमारे सर पे मुसल्लत है, इसके ख़िलाफ़ हम इस जद्दोजहद को आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसा कि हमारे मरकज़ी क़यादत ने फ़ैसला किया, हम भरपूर अंदाज में 25 तारीख़ को अपने साथियों के साथ इस गवर्नमेंट का ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। जैसा कि मेरे भाई ने फरमाया कि आज ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमत इस ऊँचे हथकंडों पे उतर आई है कि जैसा हमारा एक काबिल एहतराम पार्टी का एक मरकज़ी क़यादत का एक हिस्सा राजा सनाउल्ला के शक्ल में उन्हें जो बदनाम किया गया है, मैं समझता हूँ ये इसकी खाम ख्याली है कि ऐसे ऊँचे हथकंडों से ये पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इनके इत्यादियों को वो मरहूब कहेगा। ये उनकी खाम ख्याली होगी। आखिर इंशाअल्लाह फ़तह जमहूरियत की होगी। ऐसे सिलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता, न उन्हें देंगे। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, हम इनके साथ शाना बशाना 25 तारीख़ को और उससे आगे भी इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला हुआ उनके साथ है। अस्सलाम।